Well, from courts to the parliament, Gyan Vapi issue is now snowballing into a massive political controversy. In the parliament, 3 MPs of Kerala's Indian Union Muslim League protested outside the Gandhi statue in the premises of the parliament, holding placards that read, "Save Gyan Vapi Mosque, Save Places of Worship Act and Save Secularism." Just a while ago, the Allahabad High Court declined an interim stay on the Varanasi court order allowing the Hindu prayers in the Gyan Vapi Mosque cellar known as Vyas Tehkhana, asking the Muslim side to amend the play. On grounds in Banaras, the security has been stepped up around Gyan Vapi after the Anjuman Intizamiya called for Bandh ahead of the Friday prayers. Also at about 2 p.m, Muslim groups who strategized in Delhi yesterday over the Gyan Vapi addressed a press conference and opposing the High Court order. They called it a sadma to secularists, further adding that Varanasi District Court acted in undue haste while allowing puja in the cellar. जो ज्ञान वापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। After that, they want to make different kind of Babri Masjid in this country. They are started claiming on this masjids. So actually there is no safety for the masjids. So not recently in Delhi, another place was demolished like that. This kind of thing, it is increasing in our country day by day. It means that the very purpose of Indian Constitution, that is, what is that? Secular democracy. Secular is going to go into peril. That is to be taken as a very serious thing. So we demand India government to take steps to preserve secularism. So secularism is most important thing enshrined in the Constitution. Unfortunately, government itself is becoming instrumental in spoiling that. Well, the Uttar Pradesh administration has stepped up security in and around Gyan Vapi after the Muslim body Anjuman Intizamiya has called for a bandh ahead of the Friday prayers. This bandh call was over the Varanasi District Court's order allowing the Hindu side to offer prayers inside one of the cellars, which is the Vyas Tehkhana. Barricades were also placed within 50 meters of Kashi Vishwanath temple. Media personnel were also stopped at a particular point. Paramilitary and local police were also deployed around Gyan Vapi. Meanwhile, a political fight is also brewing on the sidelines. Yesterday, the Muslim bodies conducted a meeting and strategized on the future course of action on Gyan Vapi. The AIMM chief, Asaduddin Owaisi, was part of the meeting. Take a look at some of the political reactions that are coming in. अदालत के फैसले के विरोध तो वैसे ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती है? अदालत की वजह से होते हो। अदालत सही फैसले नहीं देती। नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर दो मत होते हो। Nothing is absolutely correct. Nothing is perfect. Every decision is for one side it is right, for another side it is wrong. बड़ी बदकिस्मती है। मंदिर मस्जिद सियासत को अब ख़त्म होना चाहिए। इंडिया सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर एक धर्म को रहने का हक है और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा जो सरकार है, इसकी वजह से बहुत से लोगों को उत्साह मिल रहा है और ये इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं और इसमें बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। इस मुल्क को पोलराइजेशन की तरफ लिया जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए घातक है, सियासत के लिए भी घातक है और मुल्क के लिए भी घातक है। मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स को राम मंदिर बनने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। In fact, my colleague Ashutosh is joining us with a ground report. Take a look. इजाजत दी गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है और जबकि जो हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो इन सब के बीच में जो अदालत है यानी हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को ये कहा कि अभी वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाए, यानी किसी तरीके का लूप होल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मस्जिद के अंदर किसी तरीके का कोई नया निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यानी जो
Okay, all right. So security has been upped as a Bandh call has been given in and around Gyanvapi. Especially security has been increased with police personnel being deployed. The masjid side and several Muslim bodies had called for a Bandh against the Varanasi court's orders that gave permission for puja to be conducted. In fact, just hours after that order was given out, puja and aarti was also held at Vyasji Ka Tehkhana in a big win for the Hindu side. But the several Muslim bodies condemned this and said that a tradition of over several years has now been broken. So today a Bandh call was given asking the shops in the area to be shut, especially from the Muslim community. Those who have their shops in and around the area, they had been asked to shut shops for the day. Ashutosh, so what is the situation like right now? जो वाराणसी की जिला प्रशासन है उसको हैंडओवर कर दिया जाए और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है यानी मुस्लिम पक्ष है वो तहखाने पे कब्जा कर सकता है क्योंकि व्यास परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उस तहखाने में नहीं जाते हैं। ऐसे में जो तहखाने का रिसीवर है वो वाराणसी के डीएम को नियुक्त किया जाए और इसे लेकर 17 जनवरी 2024 को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक फैसला आता है और इस फैसले में जो वाराणसी के डीएम है उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है। और अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी इसी जो आदेश है इस आदेश को इस ऑर्डर को चैलेंज कर रही है और ये कह रहे वो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वाराणसी के डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसे में उनको रिसीवर से Okay, all right. So Ashutosh getting us a ground report on what the situation is like on ground. Security has been increased. Several shops have also shut shop today in protest. In fact, the Muslim bodies had given a call for this protest in a Bandh call while also saying that it should be a peaceful protest to register their protest against the Varanasi court's order. But this was over the prayers that were conducted in the cellar of the Gyanvapi mosque, which is Vyasji Ka Tehkhana. The prayers there were going on until the early 90s, after which it had been stopped. Now that the Varanasi court has given permission, prayers and aarti being conducted there, but the Muslim bodies protesting against it. But it's not just there. Protests also reached outside the parliament, where IUML MPs were also protesting. And the Muslim bodies had also given a call to other people from the Muslim community as well, to pray to ensure there is peace in Gyanvapi. Ahead of the Friday prayers, this was the appeal that had been given by the Muslim bodies in Gyanvapi area, saying that there should be a peaceful protest against what the Varanasi court has done, asking for the prayers to be conducted in the basement of the masjid. My colleague Ashutosh is joining us on the broadcast with the details. Ashutosh, a Bandh call had been called. What is the situation there that you're seeing on ground? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से जो एक आदेश जारी किया गया था, उसी के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया गया था। सुबह से ही जो मुस्लिम इलाकों में जो प्रमुख दुकानें थी वो बंद थी, पूरा बाजार बंद रहा और अब जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है और नमाज खत्म होने के बाद से जो नमाजी हैं वो ज्ञानवापी परिसर से एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से दूरी बना रखी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पूरे मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसको खुलवाया गया और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, ये सरासर गलत है और इसी के खिलाफ आज उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे विरोध अपना दर्ज कराया है। हालांकि आम दिनों की अपेक्षा आज यहाँ पर जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और आलम ये था कि दोपहर होते होते जो मस्जिद के दरवाजे थे उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि अंदर जो नमाजियों की भीड़ थी वो उससे पूरा जो मस्जिद था, मस्जिद परिसर था, वो खचाखच भरा हुआ था। हालांकि इन सब के बीच में जो नमाजी हैं उनको एक तरीके से उनके चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर जो मुस्लिम पक्ष है उसे तीसरी बार मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये कहा जाता है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो तमाम आकृतियां मिली हैं उससे ये साबित होता है कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई आस्था का केंद्र है। इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी जो सबसे हार मिलती है वो है वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से, जिसमें ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी का जो तहखाना है वहां पर हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत मिल जाती है और अब उसी फैसले के खिलाफ
अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस बात की उम्मीद थी कि राहत मिलेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मस्जिद पक्ष को किसी तरीके से राहत नहीं दी है। उसने हालांकि उसने राज्य सरकार को ये जरूर कहा है कि मस्जिद के अंदर तहखाने के अंदर जो यथास्थिति है उसको बनाए रखा जाए, जो चीज़ें हैं उनको संरक्षित किया जाए और किसी तरीके का जो निर्माण कार्य है उसको न होने दिया जाए। यानी जो रिसीवर जो डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया था उनको ये साफ तौर पे आदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगड़ने न पाए और हालात को सामान्य रखने का जो जिम्मा है, जो चीज़ें हैं वो डीएम के एक तरीके से कंधे पे होगा। तो एक के बाद एक जो मुस्लिम पक्ष है उसे एक तरीके से निराशा हाथ लगती जा रही है और यही कारण है कि जो मुस्लिम पक्ष का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि पूरे आज बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह थी कि सुबह से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिले थे। खुद जो वाराणसी के सीपी हैं या फिर कमिश्नर हैं, डीएम हैं और इसके अलावा एसीपी रैंक के जितने अधिकारी थे वो वाराणसी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके अंदर लगातार वो निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा सड़कों पर भी हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो पीएससी और सिविल पुलिस के जवान हैं वो तैनात है। लिहाजा किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। Okay, but many have also been saying that it is unfair. In fact, Ashutosh, we also saw visuals from outside the parliament as well, where some MPs are protesting, saying it's very unfair to them. Until then, there were no prayers taking place. But for the Hindu side as well, it's a big win because just hours after the court order, devotees who had been waiting, उन्होंने वहाँ पे पूजा आरती की है already. But there's a lot of politics also that's playing out around it. Unfortunately, many continue to say that what has happened is unfortunate and trying to fearmonger. बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष है उसको लगता है कि शायद जो कोर्ट का फैसला आया है वो फेयर नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं आदेश उसका जो है वो सही नहीं है। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसका एक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमने देखा कि न सिर्फ राजनीतिक तौर पे बल्कि जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। वो लगातार मुखर होकर जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया था उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पे देख रहा है, क्योंकि 1993 से जो व्यास जी का तहखाना है वो बंद पड़ा था। रातों रात उनको उस तहखाने से बेदखल कर दिया गया था। जो तहखाना था उसके चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और वहां पर पूजा पाठ बंद कर दिया गया था। और इस फैसले को जो व्यास जी का परिवार था उसने अदालत में चैलेंज किया, लेकिन सुनवाई लगभग 3 दशकों तक नहीं हुई। और अब इस बीच में जब सितंबर 2023 को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब अपील दाखिल की गई तब सुनवाई शुरू हुई और लगभग 3 से 4 महीने के बाद 17 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला जज की अदालत ने उस जो तहखाना था उसका जो रिसीवर है डीएम को नियुक्त किया और इसी के बाद से यहाँ पर पूजा पाठ की जो इजाज़त थी उसकी मांग की गई और कोर्ट ने उस जो मांग थी उसको भी मांगा और अब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। यानी जो मस्जिद है उसके ऊपरी तल पर नमाज अदा की जाएगी तो दूसरी तरफ उसके निचले तल्ले यानी जो तहखाना है वहाँ पर मंगला आरती भोग के साथ साथ जो अपराह्न और सांध्य आरती के साथ जो शयन आरती है वो होगी। यानी एक ही परिसर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको करेंगे। तो ये एक बड़ा अजीब इत्तेफाक भी होगा इस पूरे देश के लिए।